So, so we can't hear you. All right. Is it fine now? Yes. Yeah, 2024 you seat paper, question 8. It is in booklet 3. You have the booklet 3, Ananya? Yeah. Yeah. Or you can read from the board also. The board is readable. Yeah. All right. ट्राई करो, डायग्राम बनाओ. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है. 6 to 8 क्लास का इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है. ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ 6 to 8. Yeah, I'll take 2 minutes to answer this question, but I want that you should answer this. It's like this. This is wheel number 2. This is wheel number 1. This is wheel number 3. And this is wheel number 4. You've been given distances between the wheels. Wheel 2 and wheel 3 is how much? Wheel 2 and wheel 3 is 170. So this distance has been given to us. It is 170. Then you have wheel 1 and wheel 2. Wheel 1 and wheel 2 have distance which is 180. Good afternoon. And the question is, in your booklet 3, it is UC 2024, question number 8. कुछ अभी गड़बड़ है थोड़ा सा. डोंट लुक एट द आंसर, भी पहले चेक कर लो तुमने क्या किया है एक बार. सो इफ यू लुक एट दीज व्हील्स, एक व्हील यहाँ पर है, एक यहाँ पर है. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज बीन गिवन टू अस. दिस वुड बी लाइक दिस. ये 180 हो जाएगा. It's a rhombus kind of thing. It would be 90 degree. This distance has been given as 170. In a parallelogram, in a parallelogram, diagonals bisect. And the case of rhombus, they bisect at 90 degree. Okay. In a parallelogram, diagonals bisect each other. And in the case of rhombus, the angle between them is 90 degree. Question number 8. Wheel का orientation भी given है. These two wheels, they have an orientation like this. It is also be taken into account. तो देखा जाए तो this the path of wheel number 1 and 4 would be like this. The path of wheel 1 and 4 would be something like this. Agree? Wheel 1 and 4 will move in such a path because the orientation is like that, right? So we need to find the radius of the circular path in which wheel 1 and 4 are moving. Radius of the circular path in which
Wheel 1 and 4 are moving. So you can take this distance as, so this is A, this distance is R, the radius is R. Since it's a rhombus, diagonals are bisecting each other at 90 degree. This would be the midpoint. Distance BD, distance between wheel 3 and 2 is how much? BD has been given to us. BD कितना दिया हुआ है? 170. So what will be DM? DM and MB would be the same, half of, it'll be 85. 170 का आधा हो जाएगा. Now I'm drawn the diagram, everything is clear to you. Using this diagram, you can get the answer very easily. Wheel 1 and 4 इस पाथ में आगे बढ़ेगा. इस पाथ का रेडियस कैपिटल आर है. क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपिटल आर. आई थिंक दिस इज ऑल्सो बिन गिवन टू यू. ये कितना दिया हुआ है? व्हील 2 का 525, राइट? This is 525. So in fact, what will be this? उसका आधा हो जाएगा ना, because diagonal bisect each other, है ना? This distance 170 है, तो 170 का आधा कितना हो जाएगा? This would be 85. अब एक काम करो, फोकस ऑन दिस राइट ट्रायंगल. ये जो राइट ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, इसमें पाइथागोरस लगा के ये वाला डिस्टेंस निकालो, एम ए फाइंड कर लो. यूज पाइथागोरस एंड फाइंड एम ए. डिस्टेंस मार्क करो सारा शीजा. जो मैंने सारा लिखा ना, ओ ए बी सी डी, सारा मार्क करो एक बार. क्या हुआ इस बार? तो तुम बिल्कुल गायब सी हो गई. किसी क्लास में ऑनलाइन, किसी क्लास में लेट. चलो ठीक है. हम्म. रिद्धिमा, I think you don't have the booklet now with you. Uh, Yes, sir. what you can do is you can open, like in your mobile, you can open, just type, like Google, you type USEED 2024 paper. Question Yes, paper 2024 USEED. yes, sir. And then question number 8. Okay, sir. So basically we are doing question number 8 of USEED 2024. Okay, sir. Okay. पढ़ो एक बार, समझो क्या हो रहा है. मैंने डायग्राम बना दिया है. आन्या हो गया? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. सर कर रही हूँ. M mark करो, A mark करो, distances mark कर लो. MD is 180. Can you find MA? Can you find MA using Pythagoras? Do that. AD square will be equal to MA square plus MD square. In the right triangle AMD, we are using Pythagoras. AD में दे रखा है, AD is 180. So 180 square is equal to MA, we need to find out. And what is MD? MD is 85. 85. So you find MA square. MA square find कर लो. MA square would be 180 whole square minus 85 square. You see in USEED questions, the level of the question will not be very high, but still
यू हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल होगा, अपर फ्लोर यूज होगा, ग्रे मैटर यूज होगा काफी ज्यादा, तो दे आर स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग। 180 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हें पता होना चाहिए, 324, जस्ट रिमेंबर इट। ऑल द स्क्वायर्स, 19 स्क्वायर 361, ये सारे स्क्वायर याद करने हैं, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो जस्ट कैलकुलेट एम ए स्क्वायर, 324 00 माइनस 85 स्क्वायर कौन बता रहा है, 77225। ऑल राइट, ये हमारा आ चुका है, तो कैलकुलेट करके बताओ एम ए स्क्वायर कितना आ रहा है। ओके, अभी तो बस मेरे ख्याल से स्क्वायर से काम चल जाएगा, कितना आ रहा है माइनस करके, 251, राइट। हम्म, हाँ, तो दिस इज 25175 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें इस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना है। लुक एट द अनदर राइट ट्रायंगल विच इज AMO, फोकस इन द राइट ट्रायंगल OMA। यहीं बैठ जाओ तुम, बैठो। हाँ, the right triangle OMA, you can again apply Pythagoras and you get the radius of the circular path. ठीक है, we already have a MA, we have MO, हाँ तो we have MA का स्क्वायर ना, वही चाहिए मेरे को। If I apply Pythagoras here, it will be R square। तुम लोग टाइम पे नहीं आ सकते यहाँ, पूरी क्लास डिस्टर्ब कर दो, अगर ऑनलाइन ले लिया करो क्लास, बेस्ट है। What is MO? It is 525 plus 85 का स्क्वायर, and what is MA square? 25175। पहले ये बताओ ये कितना आ रहा है, 610, and this is 25175। So there's no point calculating AM, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना था उसका रूट निकालने में, बिकॉज अल्टीमेटली स्क्वायर ही यूज हो रहा है। हाँ, इसका निकालना पड़ेगा। सो 610 होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 3700। ओके, हाँ, क्या नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था मैं कुछ नहीं कर सकता, बैठे रहो। मैंने लास्ट क्लास में बोला था 2024 का बुकलेट लेके आना है, ले लो वहां से फिर। तो इन दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है, डिजिट बताओ, 3, हाँ, 275। नाउ टेक द स्क्वायर रूट, यू नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर बाय यूजिंग लॉन्ग डिविजन, वो आना चाहिए पेयर्स बना के। यस, नो नॉट दैट, वो लॉन्ग डिविजन वाला मेथड जो है ना जिससे हम रूट निकालते हैं, वो आना चाहिए, दिशा को आता है, इसमें हम राइट साइड से पेयर्स बनाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर रूट निकालना सीखते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, आराध्य, आशना, अनन्या, आन्या, निविया, रिद्धिमा, नो। नो सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है ना, दिशा नहीं है बुकलेट, वरना ये ले लो, लो अभी फिलहाल ले लो। तो लेट्स लर्न हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ एनी नंबर फॉर दैट मैटर, बिकॉज रूट निकाला में आना चाहिए। मैं shall I move to next page? हाँ, यहीं पे कर देता हूँ। 39
7275। जब भी तुम रूट फाइंड करोगे पेयर्स बनाने राइट साइड से, ठीक है, दो दो नंबर के ये पेयर बन गए। अब उसके बाद यहां पे think about a digit. When you multiply that number by the same digit, it should be 39 or less than 39. Think about a digit 1 to 9 जिसका प्रोडक्ट उसी के साथ 39 से छोटा हो. If I take 7 तो 49 हो जाएगा. It'll be 6. So I'll take 6. 6 यहाँ लिखो, 6 यहाँ लिखो और 6 यहाँ भी लिख देते हैं. 6 into 6 कितना हो गया? 36. फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. क्या आ रहा है सब्ट्रैक्ट करके? 3 आ रहा है. इनको यहाँ पे ऐड करना है. ये हो जाएगा 12. This number, this plus this. अब you bring down a pair. You bring down a pair. 72 आ गया. उसके बाद एक पेयर नीचे लाओ. अब वापस से यहां मैं मार्क कर रहा हूं डैश. जहां मैंने डैश मार्क किया है वहां पे थिंक ऑफ ए डिजिट 1 to 9. 1 to 9 यहाँ पे, ताकि इस डिजिट का प्रोडक्ट इसके साथ 370 के इक्वल या छोटा हो जाए. So if I take 4 over here, it'll be more than 400. I take 3 over here. So 3, I write over here. So 3 into 123 कितना हुआ? 369. 3 आ गया. इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा वापस? 3 आ गया. इनको ऐड करो. 123 plus 3 कितना हो गया? 126. Now you bring down a pair again. So it is 375. अब क्या करेंगे? Again, we have to think for a digit over here जिसका प्रोडक्ट इसके साथ 375 या उससे छोटा है. इज इट पॉसिबल? अगर मैं सबसे छोटा डिजिट 1 भी यहाँ पे लिखता हूँ, इट बी 1261. अगर मैं वहां पे सपोज 1 लिखता हूँ 1261, इट विल बी मोर देन 375. तो ये तो पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या करेंगे? विल पुट ए 0 ओवर हियर. यहाँ पे 0, यहाँ पे 0. 0 इंटू 1260, 0 हो जाएगा. माइनस किया तो 370 आ जाएगा वापस. और इन दोनों को ऐड जब करोगे तो क्या आएगा? 1260. अब उसके बाद यू कैन पुट ए डेसिमल. डेसिमल लगाने के बाद यू कैन ब्रिंग डाउन zeros. Again the same logic. हाँ, डेसिमल का 2 zeros because you always bring down 2 digits, a pair of digits. Again think of a number over here so that इसका प्रोडक्ट इससे कम आए. बताना which digit it is. 37,500. It will be, if I write 1 over here, it will be 12,000 something. So it will be 3, है ना? So if I write 3 over here, it's 12,000. 12 3s are 36. It is 37,500, no? So, हाँ, तो इसका मतलब ज्यादा आ रहा है. ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है. 2 से आंसर आ जाएगा. When you round it off, it will be because in UC questions, the answer would be in a range. Some questions will be direct number because, but otherwise the questions like this, which involves finding square root and all, they'll give a range of answers. तो अब जरा देखो क्या आंसर है. क्वेश्चन 8 का आंसर देखो. आंसर इज 61,645. तो कितना बड़ा रेंज दिया. दैट इज, अगर किसी से कैलकुलेशन में गलती भी हो जाती थोड़ी बहुत, स्टिल you'll be marked correct. So it's not a hard and fast rule to, once your concept is fine, then it's good enough to get the answer. You can round it off also. But अगर कोई integer answer और exact answer है तो वही लिखा जाएगा फिर. हाँ. So anyone who is writing 615 to 645, his or her marks will be given to her. अगर किसी का 620 वो भी करेक्ट है,
630 है, 639 है, वो भी करेक्ट है। बट अगर 650 आ रहा है या 610 आ रहा है, दैट इज विल मार्क नेगेटिव मार्किंग वुड बी देयर। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास कुछ नहीं था, बेसिकली पाइथागोरस लगना था। और यू नीड टू अंडरस्टैंड ये हमें क्या करना है। रोम्बस में यू हैव ऑल फोर साइड्स इक्वल, राइट, बिकॉज द व्हील्स वर सिमेट्रिकली प्लेस्ड। रोम्बस इज ऑल्सो कॉल्ड काइट, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9। ये हो जाना चाहिए तुम लोगों से, 6-7 क्लास में तुमने ये सारा सीखा हुआ है। It'll take time, but you'll get answer for sure. Question number 9. क्या हुआ प्रथम, तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी? All right. Read the question. There's no hurry, ठीक है, because these question will take time. If you feel that 1 मिनट में 2 मिनट में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. Some question can answer faster also, but इसमें कुछ टाइम लगेगा, हल्का फुल्का टाइम लगेगा. So read the question. Reading में और understanding में ज्यादा टाइम लगाओगे. Spend more time in reading and understanding the question. बहुत ज्यादा रिलेशन है। तुम्हें कहीं हेक्सागन नजर आ रहा है इसमें? 8 का आंसर हमारा 630 आया था, ठीक है। दिस ए रेगुलर हेक्सागन। कुछ लेट्स टेल मी अबाउट रेगुलर हेक्सागन। एक एक पॉइंट कौन कौन बताएगा? आराध्य, टेल मी व्हाट इज एनी पॉइंट अबाउट रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है? एनी, रेगुलर हाँ, रेगुलर हेक्सागन का कुछ भी बताओ, क्या खासियत होती है? 6 साइड्स होते, वो सबको पता है, मुझे भी पता है, और कुछ नया बताओ। 60 डिग्री एंगल होता नहीं, है, 120, रेगुलर हेक्सागन में इंटीरियर एंगल इज 120, है ना। 120। इन रेगुलर हेक्सागन इंटीरियर एंगल इज 120। इन फैक्ट ये तुम नोट करके अलग से लिख लो, बहुत काम आने वाला है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लिखो। इन एनी पॉलीगन ऑफ एन साइड इज ऑलवेज n-2 इंटू 180। लिख लेना ये नोटबुक के। हाँ, अभी उस पे आ रहे हैं, ठीक है। वेलकम टू दैट। ये रिजल्ट्स ना नोटबुक के एंड में लिखते जाना, बिकॉज ये सारे काम आने वाले हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, ठीक है, चाहे रेगुलर हो इरेगुलर। रेगुलर इरेगुलर में क्या डिफरेंस है? रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारे एंगल इक्वल होंगे। इरेगुलर में ऐसा नहीं होगा। तो अगर मैं एन को 3 लेता हूं तो विल बी ए ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितना हो जाएगा? एन को 3 डाल के 360। इफ आई टेक एन इज इक्वल टू 4, विल बी क्वाड्रिलैटरल। तो 2 इंटू 180, 360। क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है। इफ आई टेक 5, 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 180 कितना हो गया? 540। एनी पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स को क्या बोलते हैं दिशा? पॉलीगन ऑफ 5 साइड्स? पेंटागन। यस, पेंटागन। तो पेंटागन में इंटीरियर एंगल का सम 540 हो जाएगा। अब अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल लिख लो, ये इंटीरियर एंगल विल बी ऑलवेज n-2 into 180 by n. This is a very very important formula. वो था सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सारे एंगल का सम। वो किसी भी पॉलीगन में चलेगा, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, ठीक है। जैसे कोई इक्विलर ट्रायंगल है तब भी 180 आएगा, इरेगुलर स्केलीन है या जो भी है तब भी 180 आएगा। तो इंटीरियर वन, इसका तो आ रहा था आंसर, स्क्वायर रूट आ रहा, लिख लो 630।
सो इंटीरियर एंगल विल बी n माइनस टू इंटू 180। अब एक काम करो, n को जरा इसमें 6 डाल के बताओ कितना आंसर आता है। गर्विता, n को 6 डालो इसमें। n माइनस टू इंटू 180 बाई n में n को 60 सब्स्टिट्यूट करो, बिकॉज रेगुलर हेक्सागन के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। एवरी ईयर यू विल फाइंड सम क्वेश्चन ऑन द रेगुलर हेक्सागन। 120 आ गया ना, मतलब इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर हेक्सागन इज ऑलवेज 120 डिग्री। ये बात समझ में आती है? 120 और सारे इक्वल होंगे। दूसरी बात, और कौन बताएगा रेगुलर हेक्सागन की कुछ और स्टोरी बताओ, कुछ और बात खास। अगर किसी रेगुलर हेक्सागन की साइड है, इंटीरियर एंगल में पता लग चुका है 120 है। हम्म हम्म वो तो है, बिकॉज रेगुलर हेक्सागन है। आन्या, एनी फाइनर पॉइंट अबाउट ए रेगुलर हेक्सागन? ये काम आने वाला है बहुत। सर सारी साइड्स इक्वल होती है। हाँ, वो तो रेगुलर तो इक्वल होगा ना। उसके अलावा अगर हम ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे, देयर विल बी 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इफ यू ज्वाइन द ऑपोजिट वर्टिसेस, देयर विल बी 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं इसमें, और सबका साइड कितना होगा? जो साइड रेगुलर हेक्सागन का होता है, ठीक है। So if you join them to the center of the regular hexagon, there'll be 6 equilateral triangles of side same as that of the regular hexagon. मतलब ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है अनन्या? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए स्क्वायर। क्या? चिल्ला के बोलो। ए स्क्वायर ए स्क्वायर? ऐसा मत मतलब अगर बोलो, क्या एक बात कर रहे साइड हो? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लिख लो भैया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सारे रिजल्ट बहुत काम आने वाले हैं। एवरी ईयर पेपर ऑफ यूसीड एंड नेफ्ट विल फाइंड दीज रिजल्ट्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है। अब लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। विद दिस इंफॉर्मेशन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। करो ट्राई। आ गया? चेक कर लो। मैच नहीं हो रहा? श्रीजा ये लिख लो सारा एक बार। ये रिजल्ट लिख लेना सारे। ये कैसा बनाया तुमने? हाँ, तो फिर भी आना चाहिए। डायग्राम कैसे बना रहे हो तुम? चलो ठीक है, इसको टच कराओ, यहाँ पे दिखाओ। ये भी ये ऐसे होगा ना, इसमें लाइक दिस। इस ट्रायंगल को यूज करो। हम्म इसके अंदर ट्रायंगल वो बन रहा है, सर्कल। सर्कल्स को टच कर रहा है ना, सारी साइड्स को। तो ये 90 हो जाएगा। ये वाला राइट ट्रायंगल यूज करके निकाल लो। स्विंग हो गया। हो गया? गुड। What you can do is you can join the center of the circle with this point and this vertex. इस ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट करो। दिस इज 90 डिग्री। तो जो बाहर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इट इज द सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल एज दिस। द ब्लू जो मैंने ड्रॉ किया है ना, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द सेम एज ब्लैक वन। अब हमें क्या दे रखा है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? इट इज यस 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 18.85 दे रखा है हमें।
तो यहां से रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। आर इज 18.85 डिवाइडेड बाय 2 पाई, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ इस डायग्राम में रेडियस ऑफ सर्कल कौन सा होगा? ये वाला, दिस इज रेडियस सर्कल, चाहे टच कर, दिस इज आर। साइड ऑफ द ट्रायंगल में मेरे को निकालना है, साइड ऑफ द ट्रायंगल मैंने ए ले लिया। एंड व्हाट अबाउट दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल में इफ यू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो या तो पाइथागोरस यूज कर लो, अगर तुम्हें 10th क्लास का ट्रिगो यूज करना है, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। बेसिकली हमें ए फाइंड करना है आर के टर्म में। I'll draw this triangle again over here. Either you can use R find करना है मुझे, this will be a by 2, और you can use trigo। कुछ लोगों को ट्रिगो से डर लगता है तो तुम पाइथागोरस यूज कर लो। पाइथागोरस यूज करके R आ जाएगा a के टर्म में, या फिर यू कैन यूज ट्रिगो ऑल्सो। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना होता है? साइन थीटा, साइन 60 इज R by a। व्हाट इज साइन 60? √3/2। √3/2। So you get the side of the triangle। साइड ऑफ द ट्राइंगल आ गया, रेडियस के फॉर्म में आ गया। साइड ऑफ द ट्राइंगल मिल चुका है रेडियस के फॉर्म में, रेडियस हमें ऑलरेडी मालूम है। अब व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड मेरे पास है 2r/√3, 2r/√3 का होल स्क्वायर, और r वहां से निकाल के हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। r यहां से सब फाइंड कर लो। 18.85 डिवाइडेड बाय पाई कितना लेना है? इट्स बीन गिवन ओवर हियर, 3.14। हाँ, अगर ट्रिगोमेट्री यूज नहीं करना, यू कैन अप्लाई पाइथागोरस ऑल्सो। कैसे लगेगा देखो, इस राइट ट्रायंगल में r² प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a², राइट। और r² इज इक्वल टू a² माइनस a²/4, और r² इज इक्वल टू 3a²/4, और r इज इक्वल टू √3a/2, द सेम रिजल्ट। Because equilateral triangle में if you draw perpendicular, it bisect the opposite side. But I would prefer that you remember this result also, कि किसी equilateral triangle में अगर तुम perpendicular bisector निकालोगे, वो हमेशा √3/2 into side होता है। ये रिजल्ट भी अगर याद कर सकते हो तो। In equilateral triangle, perpendicular dropped from the vertex to the opposite side is √3/2 into side. Because this will save time। जो यहाँ पे मेरे को 1 मिनट लगा, 1.5 मिनट लगा कैलकुलेशन में, वो तुम्हें डायरेक्टली हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये रिजल्ट याद करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जिसकी साइड ए है, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज a/√3/2 a। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सारे कोइंसाइड करते हैं, दे आर ऑल सेम। आ तो गया, और यहां से निकाल लिया हमने। कितना आ रहा है ये? 18.85 डिवाइडेड बाय 6.28, अप्रोक्सीमेटली 3 आ रहा है ये। क्यों नहीं आया ट्रिगो के मेथड से, या किया है मैंने ये? तो इससे भी नहीं आ रहा है वो तो, ये सेम ही तो आ रहा है। दिस और दिस आर द डिफरेंट, सेम ओनली। आर तुमने यहां से फाइंड किया ना, तो आर इज इक्वल टू 3। अब इसमें 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो √3/4 इंटू 4r², आर इज 3, 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा। 4 से 4 कट गया, आंसर इज 3√3। ये √3 इज हाउ मच? 1.732। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 5.15। आंसर चेक करो क्या है, बस
रेंज दिया है उसमें। यस, देखो दे आर सो जेनरस, जिसने 5 से 5.25 कुछ भी आंसर लिख दिया तब भी उसका आंसर सही माना जाएगा। मतलब आइडिया इज टू नो द कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन अगर पूरा ढंग से नहीं भी हो रहा, थोड़ी गलती भी हो जाए तो चलेगा। ठीक है। आशना, Yes, sir. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछ लेना। रिधिमा, Yes, sir. ऑल राइट, ऑल इज वेल। Yes, sir. एंड निविया, तुम्हें क्या हुआ, आज आई नहीं तुम? नहीं सर, क्यों? तबीयत खराब थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। टेक केयर। आज काफी लोगों की तबीयत खराब चल रही है। हम्म। लिख लिया शीजा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करो अब। रीड द क्वेश्चन लाउडली मन में, और फिर देखो क्या हो रहा है। टेन करना है भाई, तुम कहाँ तुम्हारा। क्या हुआ, क्वेश्चन 10 करो। हम्म। वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 10 by 20 by 30। अब देखो, जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन को लेंथ बोलते हैं। सेकंड को 20 ले लो, ब्रेथ को, हाइट को 10 ले लो। रीड द क्वेश्चन। इसमें कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, बस दिमाग का हल्का सा इस्तेमाल है जो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है। ये लिखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 10 करो, 10 पढ़ो। ये हो चुका है दोबारा, आ गया है आंसर। उधर रेंज भी आंसर में दे रखा है पीछे। क्वेश्चन 10। टेन भी करना है, 11 भी करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले समझना बहुत जरूरी है क्या चाह रहा है वो। अनन्या, जरा बताना क्या हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या करना है हमें? एक वुडन ब्लॉक है, हम्म। उसका डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। की पॉइंट्स क्या है जरा देखो। मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स आर टू कट, एंड देन वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक इन सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशन में दे रखा है इक्वल साइज प्लैंक्स, ये बहुत जरूरी है। हमें इक्वल साइज प्लैंक्स कट करने हैं, मतलब ये नहीं कि एक छोटा कर दिया दूसरा बड़ा कर दिया। वी कांट डू दैट। जो भी तुम कट करोगे, जितने भी कट करोगे, सबका डायमेंशन सेम होना मांगता है, और उनको एक के ऊपर एक लगाने के बाद हाइट कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। हाइट 100 सेंटीमीटर चाहिए हमें। सी, इफ यू कट देम टू 4 पीसेस, चारों पीसेस का डायमेंशन सेम होना चाहिए।
वी कट इनटू 6 पीसेस, डायमेंशन सेम होना चाहिए, सबका डायमेंशन सेम होगा, और उसको एक के ऊपर एक लगाने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सिर्फ रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे, दे शुड बी इक्वल मिनिमम नंबर एंड इक्वल साइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 सेंटीमीटर और 10 प्लैंक्स होंगे, और ऐसे काटेंगे कि बट माय डियर, वन डायमेंशन 30 सेंटीमीटर, तुम्हें 10 की बनाने की जरूरत क्यों है? 30 सेंटीमीटर वाला यूज कर लो। सोचो, दिमाग लगाओ, आंसर मत देखना, ठीक है। बिना आंसर देखे थिंक लाउडली, आंसर क्वाइटली। उनको लगाना है कैसे, ताकि 100 सेंटीमीटर आ जाए? नॉट दैट वे, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन प्लेस वन अनदर, उल्टा सीधा व्हाटएवर। हाँ, कैसे भी रख सकते हो, 100 आना चाहिए वो। हम्म। 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 सोचो। बताओ, ट्राई करो, कुछ गलत हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। और जब तुम इक्वल पीसेस कट करो, उसका ईच पीस का वॉल्यूम बताना है ना। हाँ, तो मैं 5 पीसेस में अगर कट किया तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 6000। अच्छी तो ओरिजिनल था। और प्लेस कैसे कर रही हो, अच्छा है 20-20 करके। पर आई थिंक इससे कम हो सकता है, मुझे लगता है, बिकॉज एक डायमेंशन 30 भी दे रखा है ना तुम्हें। वाई डोंट यूज 30 वाला वर्टिकल? इक्वल साइज कैसे हुआ? इक्वल साइज होने चाहिए सारे, जितने भी वुडन पीसेस कट करो, प्लैंक्स, वो सारा सेम डायमेंशन होना चाहिए। 2। 5 पीसेस हो गए ना फिर तो। 4 पीसेस। राइट, आ जाओ दिशा, आ जाओ, तुमने सही कर दिया। इसमें कट कर दो यहाँ पे। हम्म। राइट। राइट। हम्म। उधर बना दो। You have to cut into 4 pieces like this. So dimension of each block would be 30 by 5 by 10. Ah, right, good. Perfect, perfect. So you cut it like this in 4 equal pieces. हाँ, ठीक है। एक मिनट बता रहा हूँ मेरे भाई, ये कर लेते हैं। दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 30। तो व्हाट शी सेइंग कि 30-30 का तुम 3 वर्टिकल लगा दो और एक 10 वाला डायमेंशन लगा दो, टोटल हाइट तुम्हारा आ गया
100 सेंटीमीटर वो सेटिस्फाई हो गए, चारों पीसेस इक्वल डायमेंशन के वो सेटिस्फाई हो गया. नाउ यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस वुड बी LBH. वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज LBH, लिख लेना. 30 into 10 into 5, आंसर शुड बी 1500 सेंटीमीटर क्यूब. राइट, अब तुम बताओ क्या बोल रहे हो. 30 30 वर्टिकल लगा दिया, एक 10 का ऐसे कर दिया, बिकॉज एक डायमेंशन 10 भी है ना हमारे पास. हाँ तो ये चारों पीसेस इक्वल तो हैं. हाउ हाउ डू स्टैक देम, दैट इज डिफरेंट थिंग. वो तुम कैसे भी लगा सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है. बट जब कट करो चारों पीसेस इक्वल होने चाहिए थे. वो आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है. He says मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस. काट के तुम 10 भी लगा सकते हो, बट फिर आंसर सही नहीं आएगा ना. सो मिनिमम वुड बी 4 ओनली. और हर एक का डायमेंशन वॉल्यूम तक चेक करो, आंसर क्या आ रहा है दिशा. सही है, 1500 सेंटीमीटर क्यूब. कई बार इसको क्यूबिक सीसी भी लिखा होता है, तो सीसी इज द सेम थिंग. ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर. इज इट ऑल राइट? सबको समझ में आ गया ये? शीजा लिख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो अब. 11. ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं. ऑलमोस्ट एवरी यूसी यू हैव वन question we have to do some packaging so that in a given volume you know in a given area or given volume you pack, basically pack maximum number of pieces, because it's a part of design problem कि how to pack maximum number of pieces in a given box. किसी given space में तो maximum ऑब्जेक्ट को कैसे. ये इसका हाइट है ग्लास का. देखो ऐसा है, ग्लास जो है ना, कप जो बना हुआ है वो ऊपर से चौड़ा है, नीचे से, मतलब इट्स नॉट सिलेंडर काइंड ऑफ थिंग. इट इज नॉट लाइक दिस, बट इट इज लाइक दिस. ऐसा क्यों डिजाइन रखा, पता है क्यों क्यों रखते हैं ऐसा डिजाइन? नहीं नहीं नहीं, इसमें स्टैक हो जाता है इजीली. अगर तुम सिलेंडर बना दोगे तो एक के अंदर एक कैसे रखोगे? उसमें तो तुम तभी रख पाओगे कि भाई एक बड़ा कप बनाओ, फिर उससे छोटा कप बनाओ, फिर एक छोटा कप बनाओ. ऑल विल बी इज ए पुअर डिजाइन. द बेस्ट डिजाइन इज दिस. तुम लोग डिजाइनर बनना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए इट हैज टू बी लाइक दिस. क्या बोलते हैं शेप को? व्हाट इज द शेप कॉल्ड? अरे कुछ और भी नाम है इसका. फ्रस्ट्रम. ठीक है, बिकॉज इट्स कैन स्टैक, एक के अंदर दूसरा आ जाएगा. सोचो, अच्छा प्रॉब्लम है ये भी. क्वेश्चन नंबर 11. तुम डिजाइन कॉलेज में जाओगे, ऐसी प्रॉब्लम में सॉल्व करने को मिलेगी, प्रोजेक्ट मिलेगा, वो यही करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस. तो मैथ्स का इसमें थोड़ा सा पैकेजिंग भी तो है ना, वरना क्या करो, वेस्ट करोगे. बड़े से बॉक्स में थोड़ा एक कप एक बॉक्स में जा रहा है. यू डोंट यूज द बेस्ट. हाँ, यस. सो यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन. करो अब. कितना आ रहा है? 72 आ रहा है? इससे ज्यादा हो सकता है? कैसे? हाँ, वर्टिकल में पता है क्या होगा, एक के ऊपर एक जब कप आएगा तो उसे पॉइंट. हाँ, हॉरिजॉन्टल 84 कैसे? हम्म
28 कैसे आ रहा है? यहाँ गलती हो रही है। तुम भी चेक करो एक बार। हाँ, नहीं उससे ज्यादा होगा भाई। एक जो ऑलरेडी कप है उसका तो हाइट 4 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी आ चुका है। तो चलो करो, तुम करो, आंसर नहीं है वो। बॉक्स का डायमेंशन तुम्हें गिवन है। मैं बॉक्स का टॉप व्यू बना रहा हूँ। दिस इज 16 सेंटीमीटर। हाइट तो इसकी 6 है एंड दिस डायमेंशन इज 12 सेंटीमीटर। एक तरीका तो है कि बॉक्स को हम वर्टिकल रखें, दूसरा तरीका है हॉरिजॉन्टल रखें, ठीक है। 60 आ रहा है। अगर हम कप्स को हॉरिजॉन्टल रखें लाइक दिस, ऐसे, वी कैन प्लेस इट लाइक दिस, है ना। तो जरा बताओ एक रो में कितने कप आएंगे? इफ यू प्लेस वन कप इन साइड द अदर, एक कप के अंदर दूसरे रखा, एक कप है, दूसरा कप रखने पे दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, दिस इज वन कप एंड दिस इज 0.5 फॉर द एक्स्ट्रा कप यू हैव। तुम्हारे पास लेंथ कितनी है? द लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। एक रो में कितने कप आएंगे बताओ मुझे पहले। 25 या 28 दिशा? आशना, एक रो में कितने कप आएंगे? बिकॉज वन कप हैज अ लेंथ 4 सेंटीमीटर, एक्स्ट्रा कप यू पुट इन साइड, उसके लिए 0.5 सेंटीमीटर चाहिए। एक कप रखा तो 4 सेंटीमीटर उसमें चला गया। वंस यू कीप वन कप इट टेक्स 4 सेंटीमीटर, तो यू हैव 12 सेंटीमीटर लेफ्ट विद यू एंड each cup needs, extra cup needs 0.5 सेंटीमीटर। तो 12 डिवाइड बाय 0.5, 24 कप ये हो गए। और ये यू आर एडिंग द साइड उसमें। तो एक रो में 25 कप्स आ जाएंगे। एक रो में 25 कप आएंगे। और कितनी रोज बन रही है शीजा, बताना जरा। ये वाला डायमेंशन कितना? 12। ये है 4, दिस इज 4, 4, 4 एंड 4, 75 is the answer. Each row has 25 cups stacked horizontally, and then there are 3 rows. Answer would be 25 into 3. Check करो क्या आंसर आ रहा है। राइट, ठीक है। क्वेश्चन 12 भी है, जरा एक बार पढ़ो। आज तो टाइम नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर लेंगे, बट जैसे भी रीड करो, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें। आंसर लिख लिया, उसमें +1 भी होगा, 24 + 1। पहला क्वेश्चन, टेट्राहेड्रन क्या होता है? दिस इज इक्विलर ट्रायंगल, ट्रायंगल का बेस इक्विलेटरल है। And then if you join all these vertices to the top so that all sides are equal, ये base equilateral triangle था, so this is called tetrahedron. Yes, it's a triangular pyramid, ठीक है। Base is triangle and then you all join to the vertices, कोई बात नहीं। So this is a tetrahedron. हाँ, स्क्वायर पिरामिड भी होता है। स्क्वायर पिरामिड में क्या होगा? बेस वुड बी स्क्वायर and then join them the square pyramid. नहीं नहीं, वो मैम तुम्हें बताएंगी। ये ट्रायंगुलर पिरामिड होगा, बेसिस। सो टेट्राहेड्रन, हाँ। तो टेट्राहेड्रन में कितने फेस हो गए?
हाँ, तो टेट्राहेड्रन में कितने फेसेस हो गए? क्या? फोर फेसेस, राइट? ईच फेस इज अ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? ईच फेस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टेट्राहेड्रन, right? Because area of इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट? इसके 4 फेसेस हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो. ये आंसर याद कर लेना. टेट्राहेड्रन का टोटल सरफेस एरिया होता है √3a². वो जो रिजल्ट्स का फॉर्मूला है वहां पे लिख लो. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन इज √3 into side square. So in the next class we'll continue. ठीक है? Ending the class. वो मैम बताएंगी, बहुत उस क्लास में होगा सारा. मैम वाली क्लास में करना है सारा.